Morning students, today in video number 47 we will see geography. Next topic, foreign trade of India. So foreign trade of India means the trade, the export community and import community of India, and you will see the situation of foreign trade before independence and after independence. So see here, in olden days India had trade relations with countries of West Asia and European countries. So that is why India was called Golden Sparrow. Means before British rule, India had trade relations with many countries, that is Eastern Asia and many European countries. So due to that relation, foreign trade, India was known as golden sparrow or golden bird due to prosperity. Due to foreign trade, India was very prosperous country. But during British rule, due to dual policy and exploitation policy, India's foreign trade was discouraged. Okay, British government did not promote Indian foreign trade, so that is discouraged and did not continue for long time. The prosperity did not continue for long time, and that is stopped, break. Now see, after independence, due to partition, many jute, rice and cotton producing areas shifted to Pakistan. Okay, due to partition, many fertile areas for jute, rice, cotton, that is shifted to Pakistan. So the foreign trade also disbalanced. So this disturbed the balance of foreign trade, means export and import, that is disturbed. But soon many changes occurred in foreign trade. But soon India recovered that situation. Now India has export commodities like 7,500. So such type of commodities India export in current situation. Now see the structure of import and export separately. Here now see import. First see the import means the sending, means not sending, receiving the things from other countries. So here capital goods. In this category there are machinery, metal, goods other than iron, means of transportation. Okay, so these things, raw materials. So we import mineral oil, cotton, jute and chemical goods. And consumer goods, we import food items, electrical equipment, medicine, cloth, paper, etc. So these are import commodities, import materials. Now see export. Food stuff means here food grain, tea, tobacco, coffee, cashew nuts, spices, etc. We send to other countries. Then raw materials, hides and skins, leather, wool, cotton, iron ore, manganese, minerals, diamond. So we send to other countries. Now see finished goods, jute articles, jute garments, cloth, leather goods, silk cloth, cement, sports materials. So these are the things in export category. Okay, so it is the import and export structure of India. Okay, so here the next topic, import and export promotion in India. So here, as I have told in the previous topic, after independence, many fertile areas went to Pakistan. So in this way, there was disturbing of foreign trade, import and export. So to give balance means promotion. Promotion is in foreign trade, import and export.
So here it should be balance. Balance means here it should be in a limit and it should be in excess amount. It means in any country export should be more and import should be less. So it is a symbol of good foreign trade. हम कम से कम जितना हो सके लें और अधिक से अधिक बाहर भेज सकें चीज़ें जितना हो अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें और कम से कम चीज़ों को इंपोर्ट करें. ये है गुड सिंबल ऑफ एक्सपोर्ट मीन्स फॉरेन ट्रेड. सो इसी को बैलेंस करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस टू गिव बैलेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्वांटिटी Indian government has adopted the policy of export promotion and adopted the import substitution to improve the balance of payment position. Payment position यहाँ पे क्या है कि हम जितना कम मंगाएंगे हमें उतना कम पेमेंट करना पड़ेगा और जितना हम बाहर भेजेंगे उतना ज़्यादा हमें पेमेंट मिलेगा. तो इट इज़ कॉमन सेंस कि पैसा देना अच्छा है कि लेना अच्छा है. तो पैसा हम जितना अधिक से अधिक लेंगे फॉरेन करेंसी उतनी ही हमारे देश के लिए दैट इज गुड सिंबल. सो फॉरेन करेंसी अधिक से अधिक हमारे देश में आए ये प्रयास रहता है और हमें कम से कम अपनी करेंसी बाहर देनी चाहिए. अदरवाइज हमारी करेंसी जितना ज़्यादा बाहर जाएगी उतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी और जितनी ज़्यादा करेंसी बाहर की अपने देश में आएगी उतनी ज़्यादा करेंसी हमारी मजबूत होगी. ओके. सो इस तरह से पेमेंट पोजीशन को बैलेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया? अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन. अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम इंपोर्ट करेंगे और उनका सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में तलाशेंगे. ओके. ताकि हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई एफर्ट किए हैं, कई प्रयास किए हैं. सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू गिव द बैलेंस. फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवाइजरी, कॉटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, जूट कॉर्पोरेशन. So these are the institution. They are working in their separate field. Suppose that foreign trade institution. So this institution is responsible for you can say that monitoring the export and import commodities. Foreign export import advisory. So this council is responsible to give advice. What is the new policy, what is the new area, what is the new commodities, and what are the new markets there to export and import. So this institution is responsible to give advice to the government. ये इंस्टीट्यूशन रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस और उसके आधार पे एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि इंडिया को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करना है और किनका इंपोर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च. देन कॉटन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ये एक अपना एक यूनियन है जो भी कॉटन हैं उनकी सप्लाई और डिमांड पे कंट्रोल करते हैं. जूट कॉर्पोरेशन सेम थिंग टू प्रमोट द कॉटन और जूट एरियाज more and more and give them suitable market and for better price. See, trade promotion institution are responsible for coordinate between institution. जो भी इंस्टीट्यूट हैं इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक अलग है ट्रेड प्रमोशन इंस्टीट्यूट्स. ओके. उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि ये कॉर्पोरेशन हर स्टेट में है और उस स्टेट के अंदर का जो मार्केट है उसको एक्सप्लेन करने का है
उस स्टेट के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, उसको एक्सपेंड करना है ताकि उसका यूज़ किया जा सके और फॉरेन ट्रेड में उसका पार्टिसिपेशन बढ़ सके एंड प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू दैट एरिया। ओके, तो ये काम है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। जो भी न्यू एरियाज हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट्स की प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ एरिया में वो उसको सर्च करते हैं और वहाँ पे जो भी होती है नेसेसरी चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। हर स्टेट का अलग अलग अपना इंस्टीट्यूशन है। सही है। एक्सपोर्ट हाउस क्या होते हैं? ये बड़े बड़े शहरों में कुछ सेलेक्टेड प्लेस हैं जहाँ पे इनको बनाया गया है और इनका मेन पर्पज है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड डेवलप फंड्स फॉरेन ट्रेड के लिए। जो अपनी जो एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको फाइनेंस करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं और उनके जो भी नेसेसरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। ये चीज़ें हैं आपके कंडला गुजरात, सांता क्रूज या तो मुंबई में, कोची, चेन्नई, नोएडा, विशाखापट्टनम, इन सब जगहों पे अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेस हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल हेल्प होती है तो एक्सपोर्ट जो पर्सन है वो इनसे कंसल्ट करते हैं और उनको नेसेसरी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ओके, देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, यहाँ पे बैंक शब्द ही है। तो ये इनका काम क्या होता है? टू प्रमोट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये भी यहाँ पे बैंक ही है फाइनेंशियल हेल्प के लिए और इस तरह से ये चीज़ों को स्टोर भी करते हैं, उनको प्रिजर्व, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। ग्रीन कार्ड मीन्स टू एक्सेलरेट द पीस इन 100% एक्सपोर्ट्स। मीन्स ये ग्रीन कार्ड जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है बिजनेस, उनको दिया जाता है इस तरह का कार्ड। और इसका मतलब होता है कि ये पर्सन, ये इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है और उस हैसियत से इनको छूट मिलती है आने जाने के लिए। इनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनके लिए थोड़ा मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, इनकी गवर्नमेंट में इनका रेस्ट्रिक्शन होता है, इनका अपना टचअप होता है। ओके, तो इस तरह से ग्रीन कार्ड इनको हर तरह से हेल्प करने के लिए होता है। किसी भी विजिटिंग एरिया में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में, जब भी कहीं जाते हैं तो ग्रीन कार्ड दिखाने पे इनको अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि इनको जिनका काम है उसमें डिस्टर्ब न हो, इनका जो टाइम है वो वेस्ट न हो। लिबरल लाइसेंस सिस्टम मीन्स जो लाइसेंसिंग सिस्टम है हर कंट्री का अलग अलग आने का और जाने का जो लाइसेंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको क्या करना, लिबरल करना, मिनिमाइज करना, उसको फ्लेक्सिबल करना ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोशन मिल सके, अधिक से अधिक चीज़ें बाहर जा सकें। उनका जो कस्टम ड्यूटी है वो कम करना ताकि चीज़ें अधिक से अधिक बाहर जा सकें और इस तरह से इंकरेज फ्री ट्रेड मीन्स कोई भी कंट्री, सपोज करिए दो कंट्री हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, तो ये कंट्री यहाँ पे जाने पे ये कंट्री अपने देश में इनका सामान लाने पे कोई टैक्स नहीं लेगी इनसे और बदले में ये कंट्री भी इनका सामान अपने देश में आने पर कोई टैक्स नहीं लेगी। तो इधर इनको छूट यहाँ मिल रही है और इनको छूट यहाँ मिल रही है। दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। Okay, it means liberal license system. Okay, so these are the government efforts and it is the important export promotion in India. There are many things we have seen and it is the last topic of the lesson and I hope you will understand it and if you have any problem you can ask
you can consult me, you can phone, you can WhatsApp, you can comment, but do it, means give the response. Okay, and next we will see book exercises. So get ready. Okay, thank you, have a nice day. विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात और निर्यात की वस्तुओं से है। जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देशों को भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। इसके विपरीत जब अन्य देशों से वस्तुओं को मंगाया जाता है तो इसे आयात कहते हैं। प्राचीन काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों से थे। भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषता सदा ही निर्यात अधिक रही है, मतलब यहाँ से अधिकतर वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यह क्रम अधिक समय तक नहीं चला। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारतीय व्यापार के ढांचे को एकदम उलट पुलट कर दिया। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने दोहरी व्यापार नीति अपनाई, जिसके अनुसार इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जाने लगा और भारत में औद्योगिक माल के निर्यात को हतोत्साहित किया गया। इससे न केवल भारतीय उद्योग नष्ट हो गए, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के हितों का पूरा करने का साधन मात्र बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार का रूप लिए हुए था। भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ होता था। भारत के निर्यात में जूट, चाय, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक और मैंगनीज प्रमुख थे। आयात में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुएं होती थीं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की प्रगति की। सन 1947 में देश विभाजन के बाद जूट, कपास और चावल के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत जूट, कपास और चावल का आयात करने लगा। इस कारण हमारे देश का व्यापार संतुलन बिगड़ गया। आज़ादी के बाद भारत के व्यापार में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1947 के पूर्व भारत 50 वस्तुओं का निर्यात करता था, किंतु अब भारत लगभग 7,500 वस्तुओं का निर्यात करता है। देश की विकासशील अर्थव्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप आयातित वस्तुओं में भी वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं भारत की आयात संरचना की। भारत की आयात संरचना में 3 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली है पूंजीगत वस्तुएं, दूसरी हैं कच्चा माल और तीसरी हैं उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं में मशीन, धातुएं, अलौह धातुएं और परिवहन साधन। कच्चे माल में खनिज तेल, कपास, जूट और रासायनिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज इत्यादि। निर्यात संरचना की बात करें तो भारत के निर्यात को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है खाद्यान्न। खाद्यान्न में अनाज, चाय, तंबाकू, काफ़ी, काजू और मसाले आदि होते हैं। कच्चा माल में खाल, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैग्नीज, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात आदि। तीसरी है विनिर्मित वस्तुएं। जूट का सामान, कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के वस्त्र, तैयार कपड़े, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान और जूते। पूंजीगत वस्तुओं में मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सिलाई मशीन आदि हैं। भारत के 11 प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं, जिनसे भारत का लगभग 48% व्यापार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं मलेशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। वर्ष 2005-06 में चीन दूसरे व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। चीन के साथ व्यापार में प्रभावशाली वृद्धि अयस्क धातुएं, लोहा एवं इस्पात, जैव रसायन के निर्यात एवं मशीनरी, रसायन के आयात से हुई है।
संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर अगले प्रमुख भागीदार राष्ट्र हैं। सिंगापुर भारत को कीमती पत्थर, धातुएं, खनिज तेल, जहाज व नाव तथा अन्य मशीनरी निर्यात करता है। सिंगापुर भारत से अन्य मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनें, जैव रसायन, पुस्तकें, अखबार व पांडुलिपियां, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान आयात करता है।